हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो हम सत्यानारायण टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री से कर रहे हैं। चैप्टर 13 आज स्टार्ट कर रहा हूं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल लेंथी टॉपिक। आज हम कवर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक को और फिर इस तरह कैरी ऑन करेंगे अगली किसी वीडियो में। वी विल स्टार्ट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बट टुडे आवर टॉपिक वुड बी ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल। सो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उनकी कई सारी एग्जांपल्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज बीइंग द प्राइमरी एग्जांपल। सो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. As such, carbohydrates are the first cellular constituents synthesized by the green plants during the process of photosynthesis. So all these beautiful plants make a lot of carbohydrates for us, which we use as a source of energy. और plants ये हमारे लिए बना रहे हैं by the process of photosynthesis by using carbon dioxide from the atmosphere, water from the atmosphere, and obviously the sunlight. Thus, light is the ultimate source of energy because in the absence of light, no photosynthesis, no energy, and no carbohydrate. Okay. Now, the monosaccharide glucose is the central molecule in carbohydrate metabolism. We will discuss now in a while कि किस तरह ग्लूकोज से सारा metabolic pathway start होता है. So it's a pivotal compound. Okay, glucose is utilized as a source of energy. It is synthesized from the non-carbohydrate sources. So for example, amino acid backbone से भी carbohydrates generate हो सकता है, fatty acid से. So the other monosaccharides which are also important include fructose, galactose, and mannose. But remember, glucose is the hero, and it is composed of 6 carbons. The formula for glucose is C6. H12 and O6, and here is the structure if you want to remember: 1, 2, 3, 4, 5, and 6 carbon, 12 hydrogens you can count, and 6 oxygen molecules. Okay. Now the fasting blood glucose is roughly around 70 to 100 milligrams. ठीक है, medicine की चीजें यार. Now liver plays a key role in monitoring and stabilizing the blood glucose level, और उसको हम sometimes glucostat monitor भी कहते हैं. अगर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है बॉडी में तो liver can actually synthesize glucose by a process known as gluconeogenesis. Liver can also break down the glycogen by a process called glycogenolysis. So all these sort of thing which your liver, the beautiful liver, can do. अब कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है उसमें डिफरेंट पाथवेज हैं जो हमको पढ़ने हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को. तो ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है. सो इफ दिस इज योर सेल और आपके ब्लड में ये ग्लूकोज मौजूद है तो जाहिर है ये ग्लूकोज अल्टीमेटली सेल के अंदर एंटर होगा बाय सम रिसेप्टर्स. उनका जिक्र भी अभी हम थोड़ी देर में करते हैं. नाउ वंस द ग्लूकोज इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट और लैक्टेट, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन है सेल के पास या नहीं है. सो this first step of glucose metabolism, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, this is known as glycolysis. इसका दूसरा नाम है Embed-Meyerhof pathway, and stay tuned, आज हमको डिटेल में इसकी बात करनी है. Then next step ये है कि जो एसिटाइल CoA बनता है at the end of the glycolysis, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट पे कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, that is then utilized to produce a lot of energy. And then this is called the Krebs cycle. Okay, citric acid cycle, Krebs cycle या TCA. So इसमें basically glycolysis का अगला स्टेप है ये. So glycolysis में जो पायरुवेट बन गया उससे स्टार्ट होगा citric acid cycle और ultimately पूरे साइकिल के बाद we will get a lot of ATP molecules. Okay. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बनना, नया ग्लूकोज बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर. सो सपोज कहीं पे कोई अमाइनो एसिड है उससे ग्लूकोज बन रहा है, सपोज कहीं कोई फैटी एसिड ग्लिसरॉल इससे ग्लूकोज बन रहा है, दैट प्रोसेस इज देन कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो ग्लूकोज आप बना भी सकते हैं अपनी बॉडी में इस प्रोसेस के जरिए. ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. सो एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे तो बड़ा सा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनेगा ग्लाइकोजन का. अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो यानी ग्लाइकोजेनेसिस का रिवर्स, सो फॉर एग्जांपल यू हैव ग्लूकोज कंबाइंड विद ग्लूकोज कंबाइंड विद ग्लूकोज, सो यू हैव मल्टीपल ग्लूकोज मोनोमर्स. तो ये जो बड़ा सा पॉलीमर बना है इसको हम नाम देंगे ग्लाइकोजन. तो इसका बनना कहलाएगा ग्लाइकोजेनेसिस, और अगर ये ब्रेक होगा तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्योंकि अब ये टूट गया, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज.
Okay, then there is a pathway called HMP shunt pathway, also called pentose shunt pathway, is very important. It is actually alternative to glycolysis, and it is important in terms of for example red blood cells या कुछ particular जगहों पे हम इसका जिक्र करेंगे. So it is an alternate basically to glycolysis. Remember this, okay? हम बात करेंगे इसकी जब इसकी डिटेल आएगी. Then there is a uronic acid pathway. Glucose is converted into glucuronic acid, pentoses. These are all important intermediates जो actually किसी और pathway में as a main product utilize होते हैं. Then there is galactose metabolism. They are concerned with the conversion of galactose to glucose. Then there is fructose metabolism, the oxidation of fructose to pyruvate and then so fructose की metabolism. Then amino sugar and mucopolysaccharide metabolism, नाम से जाहिर है amino sugars and mucopolysaccharides की metabolism. So the point is कि carbohydrates का जो metabolism का spectrum है वो इन तमाम नामों पर जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं उन पर मुश्तमिल है. First of all is the glycolysis. We will talk about it in today's video, and then next video में we will talk about citric acid cycle और फिर आगे और videos बनाते जाएंगे. So it will be like 4 or 5 videos before we complete this particular chapter. Now first thing first, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कैसे होता है? ऑब्वियसली कुछ रिसेप्टर्स के जरिए एंटर होता होगा, है ना, और वो रिसेप्टर्स अभी हमको डिस्कस करने हैं. सो द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो विद इन द सेल एज कंपेयर टू द प्लाज्मा, और वो एंटर होते हैं दो तरह के रिसेप्टर्स, आपको याद रखने हैं. एक कहलाते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर्स और दूसरे कहलाते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर्स. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंसुलिन independent transport system, which comprise of various subtypes. So this is the carrier mediated uptake of glucose which is not dependent, इसीलिए इसका नाम insulin independent है. It is not dependent on insulin and this is operative in hepatocytes, erythrocytes and brain. So ये वो एरियाज हैं आपकी बॉडी में कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम भी है, नहीं है, तब भी इन सेल्स में ग्लूकोज एंटर होगा, बिकॉज इनमें जो ग्लूकोज की एंट्री है उसके लिए हमें इंसुलिन नहीं चाहिए. सो रिमेंबर दिस इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Then we have insulin dependent transport system and these are called glucose transporters. GLUT के नाम से इनको हम जानते हैं. So for example GLUT1 to GLUT5, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, इस तरह. They are present in the cell membranes obviously and they exhibit tissue specificity. For example, GLUT1 जो है, it is very much abundant in erythrocytes, whereas GLUT4 is abundant in skeletal muscles and adipose tissue, and they are particularly under insulin dependence. इंसुलिन होगा तभी सेल में ये जो रिसेप्टर्स हैं ग्लूकोज को अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो इंसुलिन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. तो इसी तरह अगर जो डायबिटिक्स होंगे तो डायबिटिक्स के ब्रेन में, लिवर में तो ग्लूकोज एंटर हो रहा होगा, रेड ब्लड सेल्स में भी, लेकिन मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज एंटर नहीं होगा बिकॉज दोज आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन. Okay, so insulin increases the number of promoter activity of the GLUT4 in the skeletal muscle. In type 2 diabetes, these are affected, therefore GLUT4 receptors are down and therefore the muscles and the adipose tissue cannot utilize glucose. So क्या बात हुई? ले देखिए टोटल बात ये हुई कि जो ग्लूकोज एंट्री है into the cell, it is obviously by receptors, और वो receptors या तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है जो कि एरिथ्रोसाइट, हेपेटोसाइट और ब्रेन में है, या वो इंसुलिन डिपेंडेंट है which is more common in muscles and adipose tissue. और फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का आपको नाम पता होने चाहिए और उनकी स्पेसिफिसिटीज पता होनी चाहिए. ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. विद दिस बैकग्राउंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू एक मुझे डायग्राम यहाँ नजर आ रही है, उसको देख लो. ये क्या है? वेल, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ग्लूकोज कितने सारे पाथवेज में एंटर होता है. इट एंटर्स इनटू ग्लाइकोलाइसिस जो कि हम आज पढ़ेंगे. इट एंटर्स इनटू एचएमपी शंट, यूरोनिक एसिड पाथवे. तो ये सारे जो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पाथवेज बताए थे उन सब की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सो विद दिस नाउ लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज साइकिल, और वो है ग्लाइकोलिसिस. इसमें अल्टीमेटली ये होगा कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में या लैक्टेट के मॉलिक्यूल में, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन है कि नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का जो वर्ड है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. ग्लाइकोज इज फॉर शुगर, ग्लाइकोज मींस शुगर और स्वीट, एंड लाइसिस इज डिसोल्यूशन यानी डेग्रेडेशन, और इसमें होता भी बेसिकली यही है. ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू समथिंग व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन अ मिनट. It is a universal pathway. That's an important line.
हर सेल में होता है, तमाम लिविंग सेल्स में. The complete pathway of glycolysis was elucidated in 1940. This pathway is also known as EM pathway या embedded Mayer-Hoff pathway, और ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये पूरा पाथवे रखा गया है, जो ग्लाइकोलिसिस इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये चीज भी होती है आपकी बॉडी में और हर लिविंग सेल में होती है. Now, glycolysis is defined. इसकी definition है, it's defined as the sequence of events in which there is conversion of glucose या sometimes glycogen directly. आपको पता है glycogen is a polymer of glucose. So most of the cells utilize glucose, but sometimes glycogen can be utilized. So glucose is converted ultimately into either pyruvate or lactate with the production of ATP. So that is how you define glycolysis. यानी glycolysis का starting point है glucose, and then जो end point है that is either pyruvate or it is lactate. ठीक है, और बीच बीच में यहाँ ATP बनती रहेगी. So basically इस पूरे गेम का पर्पस है कि आपको ATP मिलती रहे. So that's the job of glycolysis. Now imagine every cell does it. So cell के अंदर जब glucose enter होगा, this glucose will be metabolized ताकि energy produce होती रहे. So very important pathway glycolysis. इसके salient features, it takes place in all the cells of your body. The enzymes for this pathway are present in the cytosomal fraction, यानी cytoplasm में होते हैं. Glycolysis occurs in the absence of oxygen, is known as anaerobic glycolysis, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक. ये दो नाम आपको पता होने चाहिए. Lactate is the end product in anaerobic respiration, यानी अगर anaerobic glycolysis हो रही है तो lactate बनता है, end product of glycolysis, और अगर aerobic glycolysis हो रही है then pyruvate is produced, which is then ultimately oxidized to carbon dioxide and water. अभी हम details पढ़ेंगे, but अभी मोटा मोटा आपको concept दे रहे हैं कि what happens is that glucose is converted either into lactate or into pyruvate. ठीक है, depending upon oxygen की presence है या नहीं है. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक सिस्टम होगा, लैक्टेट बनेगा. ऑक्सीजन है तो पायरुवेट बनेगा. नाउ ग्लाइकोलिसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर ATP जनरेशन इन द टिश्यूज व्हिच लैक माइटोकॉन्ड्रिया. देखो कहानी ये होती है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है तो ये ग्लूकोज is converted by glycolysis into an end product, say for example pyruvate, और फिर फर्दर पायरुवेट से एक और प्रोडक्ट बनता है which is called acetyl CoA. ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगला स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल का, जिससे एनर्जी बनेगी बहुत सारी. अब वो सेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तमाम सेल्स उनको भी तो एटीपी बनानी है. उनमें मेजर पाथवे ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस ही है. सो हमारे रेड ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल, कॉर्निया, दीज डू नॉट कंटेन लेंस फॉर एग्जांपल, दे डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया. सो इनका सारे का सारा एटीपी का जो सोर्स है वो सब इज ग्लाइकोलिसिस ही की वजह से है. सो वो कहते हैं ना क्योंकि तुम ही हो, इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Glycolysis is also very essential for brain, which is particularly dependent on glucose for the energy. So glycolysis in the brain is the main energy supplier. Glycolysis may also be summarized as follows. ये पूरी इक्वेशन फॉर्म में है कि ग्लूकोज है, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट में. एक ग्लूकोज से दो लैक्टेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और लैक्टेट बन रहा है तो इसका मतलब ये एनारोबिक है, यानी देयर इज नो ऑक्सीजन इन देयर. फॉर एग्जांपल जब आपके मसल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त का सिनेरियो, साथ दो एटीपी बन रहे हैं और दो एडीपी और दो फॉस्फेट ग्रुप, इनके साथ हाई एनर्जी फॉस्फेट जब कंबाइन करेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट. तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बन रहा है? दो एटीपी. अभी हम इसकी बात करेंगे भी कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बनते कितने हैं. Now glycolysis is a central metabolic pathway which may with many of its intermediates providing branch point to other pathways. Thus intermediates of glycolysis are useful. So very important point. देखो अभी थोड़ी देर में मैं आपको ना ये खतरनाक चीज दिखाऊंगा जो कि ग्लाइकोलिसिस का पूरा चार्ट है, which starts from glucose, और फिर ग्लूकोज मेटाबोलाइज होते बहुत सारी चीजें बनाते अल्टीमेटली जो चीज बनाएगा that will be either pyruvate or lactate. लेकिन इस पूरे पाथवे में ग्लाइकोलिसिस में बीच में बहुत सारी और चीजें बनती हैं. सो फॉर एग्जांपल वाटर बन रहा है, फॉर एग्जांपल एटीपी बन रहा है, एंड और चीजें बन रही हैं. तो ये जो साइड प्रोडक्ट्स हैं या बाय प्रोडक्ट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो किसी और पाथवे में यूटिलाइज होते हैं. सो फॉर एग्जांपल NADH है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पाथवेज. सो आपको बात ये याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस सिर्फ आपको ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके नहीं देता, बट जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस से, वो इंटरमीडिएट्स और बहुत सारे पाथवेज में फीड करते हैं. सो दे आर कनेक्टेड विद सो मेनी अदर पाथवेज व्हिच आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म. सो इट्स ऑल इंटीग्रेटेड.
Reversal of glycolysis along with the alternate arrangements at the irreversible step will lead to synthesis of glucose, and synthesis of glucose is known as gluconeogenesis, यानी formation of new glucose. Neo मतलब new, gluco मतलब glucose, genesis नए ग्लूकोज का बनना. यानी ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है इनटू से फॉर एग्जांपल पायरुवेट, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. अगर इस तमाम साइकिल को रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्सल में अल्टीमेट चीज क्या बनेगी? ग्लूकोज. सो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज यूटिलाइज होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता है. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब इस तमाम जनरल जो फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं तो आपको एक मेजर पिक्चर मिल गई कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज यूटिलाइज होता है एंड यू आइदर गेट पायरुविक एसिड या पायरुवेट और यू गेट लैक्टेट. ठीक है, जो लंबा चौड़ा साइकिल है ना, जो स्टेप्स इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड, अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में. एक है जिसमें एनर्जी यूज होगी, उसे हम नाम देते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यानी ये वो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के जिसमें एक्चुअली एटीपी यूज होगा. एटीपी बनेगा नहीं, एटीपी यूज होगा. देन देयर इज स्प्लिटिंग फेज. स्प्लिटिंग फेज में ये होता है कि देखें ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. स्प्लिटिंग फेज में ये होता है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये लोअर कार्बन कंपाउंड C3 कार्बन कंपाउंड में, यानी 3 कार्बन कंपाउंड में फॉर एग्जांपल स्प्लिट हो जाता है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि पहला स्टेप्स कुछ ऐसे हैं जिसमें एटीपी यूज होगा. सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. देन देयर इज अ फेज जिसमें कार्बन 6 कंपाउंड वाला ग्लूकोज छोटे कार्बन की लेंथ में डिवाइड होगा. And then there are steps which actually produce ATP. So these are energy generation phase. ठीक है, तो ये 3 तरह के steps हैं. तो अभी जितने भी हमने steps पढ़ने हैं वो they will fit into one of these 3 categories. तो पहली कैटेगरी है energy investment phase, और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जैसे ही सेल में एंटर होता है it is converted into glucose 6 phosphate. So you see रिएक्शन में अगर हम देखें, so this is glucose, this is the starting point. So सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हो गया, this is inside the cell now. और ग्लूकोज पहले स्टेप में कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर? ग्लूकोज 1 phosphate and then 6 phosphate. So ultimately you get glucose 6 phosphate. So that is a very very important point कि ग्लूकोज 6 phosphate एनर्जी कंज्यूम करेगा और इस पूरे स्टेप में ATP will be utilized. So you see here ATP is consumed into ADP और एक जो फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकलेगा, क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ट्राइफॉस्फेट अब क्या बन चुका है? डाइफॉस्फेट. तो एक फॉस्फेट कहां गया? एक फॉस्फेट यहां कार्बन 6 पे आके फिट हो गया, इसीलिए अब जो कंपाउंड बना है वो कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अच्छा, ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वाला आप साइकिल देख रहे हो ये ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन है. सो ग्लाइकोजिन जब मेटाबोलाइज होता है, यहाँ ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो रहा है, लेकिन जब ग्लाइकोजिन मेटाबोलाइज होता है तो वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. सो फर्स्ट स्टेप जिसमें एनर्जी यूज हुई है वो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इस स्टेप पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है आइदर इट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. दोनों आइसोएंजाइम्स हैं एंड ये जो रिएक्शन हो रहा है दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन. इट यूटिलाइजेस एटीपी एंड मैग्नीशियम. हेक्सोकाइनेज जो है, अभी 2 अलग अलग नाम मैंने लिए, इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज. इट कैटालाइजेस फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस हेक्सोजेस. अब ये हेक्सोजेस में ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज भी आता है, मैनोज भी आता है. इट हैज लो Km फॉर द सबस्ट्रेट, यानी बहुत ही कम ग्लूकोज होगा तब भी ये एंजाइम काम करेगा. ओके, एंड देन द अदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड ग्लूकोकाइनेज, इट इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन लिवर एंड इट हैज अ वेरी हाई Km फॉर ग्लूकोज. यानी ये एंजाइम तब काम करेगा लिवर में जब काफी ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में होगा. सो दैट विल बी देन यूटिलाइज्ड ड्यू टू हाई एफिनिटी. यानी low Km of glucose is utilized by the hexokinase even at a low concentration. So even if low glucose amounts are present, hexokinase will work. अब बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज impermeable to the cell membrane. It is a central molecule with a variety of metabolic fates. This particular molecule can enter glycolysis का further step में चला जाएगा. It can also undergo glycogenesis and glycogen बनाएगा. It can also be utilized for gluconeogenesis, new glucose or the pentose pathway. So all these are different. यह बहुत important point एग्जाम्स के लिए कि एक दफा जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या क्या कर सकता है.
इस वक्त हम वो करेंगे जो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड होगा, यानी ग्लाइकोलिसिस में आगे क्या बनाएगा. सो एक्चुअली जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लाइकोलिसिस का नेक्स्ट स्टेप है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. यहाँ कोई एटीपी आप देख रहे हैं यूटिलाइज नहीं हुआ. उसका रीजन ये है बिकॉज ये भी 6 फॉस्फेट यानी कार्बन 6 पर फॉस्फेट लगा हुआ था, एक ही फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ भी एक ही फॉस्फेट ग्रुप है कार्बन 6 पर. सिर्फ ये हुआ कि आइसोमर बन गया ना, ग्लूकोज से अब क्या बन गया है, फ्रक्टोज बन गया है. और जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज. सो ग्लूकोज का अब फ्रक्टोज बन चुका है, दैट इज द ओनली डिफरेंस एंड दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. लेकिन ये एक देख रहे थे आप, ये वाला इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बनता है डायरेक्टली, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता, कुछ बाईपास लेना पड़ेगा. वो हम पढ़ेंगे जब हम ग्लूकोज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. सो ग्लूकोज से बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इट इज फॉस्फोराइलेटेड वन मोर टाइम. ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी ऐड कर दिया जाता है, यानी एक एटीपी यहां भी यूज होगा. जब कभी फॉस्फोरस ऐड होगा इसका मतलब है एटीपी यूज होगा. सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नाउ कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. तो एक एटीपी इस रिएक्शन में यूटिलाइज होगा और एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ओके, सो नाउ वी हैव गॉट फ्रक्टोकाइनेज की वजह से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट नाउ. यहां तक जितने भी स्टेप्स हुए हैं दीज आर ऑल यूटिलाइजिंग एटीपी. आपने देखा पहले स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हुआ जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. फिर तीसरे स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हुआ जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना. ओके, तो ये वाला रिएक्शन भी बाय द वे इरिवर्सिबल है. सो इन तमाम को हम कहते हैं, सो इफ यू जस्ट मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, सो ये जितना भी साइकिल था जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सिंगल एरो. देन फ्रक्टोज 6 है, यहाँ पे भी इरिवर्सिबल. तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं आप देखेंगे यहाँ एटीपी यूज, इसमें भी एटीपी यूज हो रहा है, इसमें भी एटीपी. सो ये वाला जो पार्ट है ग्लाइकोलिसिस का, दिस इज एटीपी कंज्यूमिंग पार्ट. तो यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है. और अब अगला जो पार्ट हम देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे देयर विल बी डिवीजन ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड जो कि फ्रक्टोज है into smaller compounds. Now they have 3 carbon compounds. So अगला जो phase है glycolysis का, that is now not energy utilizing but splitting phase. और splitting phase में क्या हो रहा है? The 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate is split to 3 carbon compounds. एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है that is alzolase. अच्छा, the enzyme phosphotriose isomerase catalyzes the reversible interconversion of these two compounds, which are glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Thus, the 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are obtained from 1 molecule of glucose. So, if you look at the diagram here, this is fructose 1,6 phosphate जो यहाँ बना था अभी थोड़ी देर पहले. ये अब split हो रहा है by the action of aldolase into this compound and this compound. इन दोनों compounds में 3-3 कार्बन है, देखें 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3-3 कार्बन. और one is glyceraldehyde 3-phosphate, the other one is dihydroxyacetone phosphate. So और ये आपस में interconvertible हैं by this enzyme phosphotriose isomerase. So होता ये है कि basically ग्लूकोज से मामला शुरू हुआ था. अब तक अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज से, चले मुझे बताएं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कितने बनते हैं? 1 ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितने बनते हैं? 1. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कितने बनते हैं? ये भी 1. लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने बनेंगे? 2. इसलिए क्योंकि एक 3 कार्बन कंपाउंड इधर है, दूसरा इधर, और ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है. सो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड. और फिर आता है एनर्जी जनरेशन फेज जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है. And if you look at the diagram here, glyceraldehyde 3-phosphate is now converted into 1,3 bisphosphoglycerate by this particular enzyme, and this is a very important step in terms of production of the byproducts. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस reaction में there is formation of NADH and hydrogen ion and a high energy compound. The high energy compound is the 1,3 bisphosphoglycerate. यानी ये जो molecule बना है 1,3 bisphosphoglycerate, it is a high energy compound. It contains 2 phosphate bonds. और ये जो 2 phosphate bonds हैं, they by themselves they are high energy compounds. Indoacetate and arsenate inhibitors and arsenate inhibit the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, so they are poisonous. In aerobic
condition NADH जो कि यहाँ बना है इस स्टेप पर passes through the electron transport chain and 6 ATP molecules are synthesized. 6 क्यों? क्योंकि 2 times 3 का मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल से 3 ATP बनेंगे, लेकिन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना. आपको ये बात याद है ना कि यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे. एक मॉलिक्यूल से 3 ATP मिलता है, तो 2 मॉलिक्यूल से 6 ATP मिलेगा. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Now the next step is the enzyme which is known as phosphoglycerate kinase acts on this high energy compound, resulting in synthesis of ATP and formation of a new compound called 3-phosphoglycerate. This step is a good example of substrate level phosphorylation. Since ATP is synthesized from the substrate without involvement of the electron transport chain, phosphoglycerate kinase reaction यानी इस enzyme का जो reaction है, it is reversible. A real example amongst the kinases. So it's a reversible reaction. ये बात आपको याद रखनी है. पूरे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 3 जगह हैं जहां पे irreversible reaction है. Okay? अब यहाँ क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3-फॉस्फो. So ये 1 पे जो फॉस्फेट था वो गया. अच्छा, फॉस्फेट जब निकलेगा तो ढूंढेगा मैं किसके साथ मिलूं, मैं किसके साथ मिलूं, ADP के साथ मिलता हूं और क्या बना देता हूं, ATP. So you are generating ATP. अब ये जो ATP बन रहा है, ये ATP आपकी बॉडी में आपको पता है सेल में यूजुअली बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये जो NADH मॉलिक्यूल है, इट गोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट प्रोड्यूसेस 6 ATP मॉलिक्यूल बिकॉज 2 मॉलिक्यूल बने थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के. सो एक मॉलिक्यूल से 3 ATP, 2 मॉलिक्यूल से 6 ATP. ये जो ATP बनता है 6 ATP, this is produced because of electron transport chain. लेकिन ये जो ATP बना है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का, जब 1 फॉस्फो निकला और 3 फॉस्फो बच गया, तो ये जो एक फॉस्फेट निकला था, यहाँ जो ATP बना है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यानी ये जो ATP बना है इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ नहीं है. ठीक है, और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेट होकर बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट. यहाँ पे कोई ना फॉस्फोरस ऐड हुआ है ना फॉस्फोरस निकला है, सिर्फ फॉस्फोरस 3rd कार्बन से अब 2nd कार्बन पे आ गया और एंजाइम का नाम है म्यूटेज. ओके, एंड देन इनोलेज वर्क ऑन दिस कंपाउंड टू प्रोड्यूस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. अब यहाँ पे भी एक फॉस्फेट है, इससे पिछले स्टेप पर भी एक फॉस्फेट था, यानी कोई ATP यहाँ से भी नहीं निकलेगा. ओके, और अल्टीमेटली जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एक और कंपाउंड में विच इज व्हाट वी कॉल द पायरुवेट. और इस स्टेप में द फॉस्फेट ग्रुप इज लॉस्ट and the ADP is converted into ATP. So you get another ATP here. Okay? So you need to remember कहाँ ATP utilize हो रहे हैं, कहाँ ATP बन रहे हैं. So very, very important discussion. So 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate by a mutase. The high energy compound of phosphoenol pyruvate is generated to form 2-phosphoglycerate by the enzyme enolase. This enzyme requires magnesium and is inhibited by fluoride. For blood glucose estimation in the laboratory, fluoride is added to the blood to prevent glycolysis. That's the reason, because वो इस enzyme को inhibit करता है और glycolysis रुक जाती है. Okay? Right. So the enzyme pyruvate kinase catalyzes the transfer of high energy phosphate from the phosphoenol pyruvate to ADP, and as a result, you again produce ATP without electron transport chain. So this is another step जिसमें substrate level phosphorylation हो रही है. So बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ हो रही है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में. एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है इस स्टेप पर जिसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, दिस कंपाउंड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट में. दिस इज वन पॉइंट जहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ATP बन रहा है. और दूसरा ये एग्जांपल है दिस पॉइंट जिसमें डायरेक्ट ATP बन रहा है फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट इस स्टेप में. तो यहाँ पर भी सबस्ट्रेट लेवल ATP बन रहा है. सो देयर वी आर गेटिंग ATP, और ये स्टेप ऐसा था जिसमें ATP यूज हुआ था. यू सी वी यूज्ड ATP इन दीज स्टेप्स. यहाँ भी ATP. सो 2 स्टेप्स ऐसे आए जिसमें ATP यूज हुआ, 2 स्टेप ऐसे आए जिसमें ATP बना, और एक स्टेप ऐसा आया जिसमें एक ऐसी चीज बनी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी और ATP बनाएगी. सो यू नीड टू रिमेंबर कि डायरेक्ट ATP कहाँ बन रहा है, डायरेक्ट ATP यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, और NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है. ओके, so far so good. ये आपको याद रखना पड़ेगा, जाहिर है यार. तो पहला जो पार्ट था ग्लाइकोलिसिस का, दैट वाज एनर्जी कंज्यूमिंग पार्ट.
फिर जो पार्ट आया दैट इज द स्प्लिटिंग पार्ट, और फिर जो पार्ट आया दैट इज द एटीपी जनरेशन पार्ट। 3 पार्ट्स हो गए। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। अब पायरुवेट बन गया आपके पास। इट कैन बी, अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन है तो स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी। इफ देयर इज ऑक्सीजन अवेलेबल then this pyruvate is converted into something else such as acetyl CoA and a different cycle will be initiated. लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है under anaerobic condition, what happens कि pyruvate is reduced by NADH to produce lactate. The NADH utilized in this step is obtained from the reaction catalyzed by the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The formation of lactate allows the regeneration of NAD+, which can be reused by the glyceraldehyde 3-phosphate. So glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, इस स्टेप पर हमने ये NADH बनाया था, राइट? ये NADH यूज हो जाता है पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने में। So the occurrence of the uninterrupted glycolysis is very essential in skeletal muscle. जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, glycolysis in erythrocyte leads to lactate production as well because there are no mitochondria. There is no mitochondria to utilize the later steps of glycolysis. ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसे centers भी हैं जो brain, retina, renal medulla, for example, they also derive their energy mostly from glycolysis because they are purely dependent on glucose for their energy supply. Then lactic acidosis क्या चीज है? This is something when the levels of lactic acid in the blood go very very high, particularly during strenuous exercise. Severe form of lactic acidosis, or this is not important here, not relevant here, so we are just not worrying about it. Now that is a super important heading where you need to know कि actually पूरे glycolysis के process में ATP बनता कितना है. So that is something very very important for you to understand कि how much ATP actually do we produce. Okay. So the details of ATP generation in the glycolysis are given in table 13.1 under anaerobic condition. So now we consider कि anaerobic condition एक होगी और एक aerobic condition होगी, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कितना ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं हम glycolysis से, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कितना. So if there is no oxygen around, then we are producing 2 ATP. They are synthesized. While under aerobic condition, we either make 8 ATPs or 6 ATPs. It depends upon कौन सा shuttle pathway use हो रहा है. Yeah, we will discuss this later in this chapter. हम बात करेंगे इसकी कि what do we mean by different shuttle pathways. But remember, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो you produce more ATPs, either 8 or 6. लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, you produce only 2 net ATPs. सिर्फ 2 net ATP बनता है. ठीक है? When the glycolysis occur from glycogen, मैंने आपको शुरू में बताया था कि glycolysis can start either from glucose or it can also start directly from glycogen. तो अगर glycogen से start हो रहा है glycolysis तो एक extra ATP बनता है, यानी अगर glycogen से बात शुरू हुई है तो 3 ATP बनेंगे अगर बात होगी anaerobic glycolysis की. Okay? Now glycolysis in the shuttle pathway is in the presence of mitochondria and oxygen. जो NADH बनता है, it participates in the shuttle pathway for the synthesis of ATP. So it will go to the electron transport chain, for example. If the cytosolic NADH uses malate aspartate shuttle, 3 ATP बनते हैं from 1 molecule. यानी अगर 2 molecules होंगे तो 6 ATP बनेंगे. This is in contrast to glycerol phosphate shuttle that produces 2 ATP per molecule. So in this case we will have only 4 ATPs. कैंसर ये टेबल भी देख लो यार. ग्लाइकोलिसिस पाथवे में नंबर ऑफ एटीपीज कहाँ कितने बन रहे हैं. सो इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस -2 का मतलब ये है कि यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं. सो माइनस मतलब यूटिलाइज हो रहे हैं. सो 2 एटीपीज आर कंज्यूम इन द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. सो इफ यू गो बैक टू द टेबल हियर, ये जो चार्ट था हमारा कि पहला स्टेप जहाँ पे हेक्सोकाइनेज काम कर रहा है, एक एटीपी इधर यूज हो रहा है. सो 1 एटीपी यूटिलाइज हियर -1, and then phosphofructokinase यहाँ ATP यूज हो रहा है, so that is -1. so total -2 का फिगर आपको याद रखना है और ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम के लेवल पर ये 2 ATP यूज हो रहे हैं. so at the level of hexokinase and at the level of phosphofructokinase. ठीक है, तो 2 ATP है. अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ATP बन कहाँ रहे हैं. मैंने आपको बताया कि ATP 2 सीक्वेंसेस में बन रहा है. एक सीक्वेंस है ETC का सीक्वेंस, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए बनता है, एंड दैट इज बाय द NADH. अच्छा, 2 ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जहां 2 ATP बनेंगे बिकॉज़ 2 मॉलिक्यूल्स हैं. एक्चुअली बिलो द लेवल ऑफ दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट नीचे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 बनेंगे. सो ये जो ATP बनेंगे, देयर विल बी 2 ATP प्रोड्यूस्ड हियर एट दिस लेवल, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, and there will be 2 ATP produced at this level, which is pyruvate kinase. So pyruvate kinase and
pyruvate kinase and phosphoglycerate kinase पर there are two ATPs, two here, two here. तो ये दो ATPs याद रखने हैं आपको. एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर कि जो NADH बना है वो ETC में जब जाएगा तो हाउ मच एनर्जी विल इट प्रोड्यूस. सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो 6 ATPs बनेंगे. ओके, तो टोटल ATP बने कितने? 6, 2 8 और 2 10. तो 10 ATPs बन रहे हैं टोटल, और जिसमें से 2 आप माइनस कर दें जो कि यूज हुए हैं, तो यू आर स्टिल इन गेन ऑफ 8 नेट ATP मॉलिक्यूल्स. ऐसा ही है ना भाई, सिंपल चीज है यार, इसमें कोई मसले वाली चीज नहीं है. सो यू नीड टू नो एक्चुअली कि जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, सो यू यूजुअली प्रोड्यूस 8 ATPs, net 8 ATPs are produced. So this is a very very important point, because आपको पता होना चाहिए कि जो करेंसी है आपकी बॉडी की, which is the molecule of ATP, ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बनता है. लेकिन अगर आप बात करेंगे anaerobic glycolysis की, then obviously the situation will differ. It will be a different situation then. Okay, so अभी हम सिर्फ glycolysis की बात कर रहे हैं. We are not talking about the other steps. So we are not talking, for example, about citric acid cycle, and we are not talking about other ways जिनसे ATP produce हो रहे हैं. Simply focusing on glycolysis. यानी glycolysis जिसका मतलब है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर. कितना ATP बना? 8 ATP usually. Okay, so cancer and glycolysis, cancer cells display increased uptake of glucose and glycolysis because they need a lot of energy, so they do a lot of in fact there were some researchers China और जापान में जिन्होंने ये propose किया था कि actually अगर ग्लूकोज कंजम्पशन 0 कर दी जाए तो कैंसर सेल्स डेड हो जाते हैं. So they proposed zero glucose consumption as a treatment for cancer. As the tumor grows rapidly, the blood vessels are unable to supply this is then irrelevant. Okay, now so very important heading guys, irreversible steps. 3 steps हैं जो irreversible हैं, वो आपको enzyme वाले step याद होने चाहिए. That is at the level of hexokinase, at the level of phosphofructokinase and these 3 are the irreversible steps of glycolysis. So if you go back to the algorithm here, जो यहाँ पे thick arrow नजर आएगा, that is the irreversible step. So you see here this is an irreversible step, this is an irreversible step, and then last step which is the pyruvate wala step is irreversible step. So in fact this one phosphoenol pyruvate से pyruvate बनना, pyruvate kinase. तो आपको enzymes के actually नाम पता होने चाहिए कि कौन से enzyme वाले steps irreversible है, completely irreversible. Okay, अच्छा ऐसा नहीं है. ये point क्यों important? ये point इसलिए important है कि देखें ग्लूकोज से जो pyruvate बन रहा है बीच में ये ऊपर भी जा सकता है, सो इट कैन गो इन द रिवर्स डायरेक्शन. लेकिन जहां इररिवर्सिबल सिनेरियो आएगा वहां ये सिंपली रिवर्स नहीं हो सकता, इसको कोई और बाईपास लेना पड़ेगा, कोई मॉलिक्यूल बनेगा फिर जाके ग्लूकोज बनेगा. बिकॉज देयर आर इंस्टेंसेस इन द बॉडी वेयर यू हैव टू एक्चुअली मेक ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज बनाना भी पड़ता है. तो ऐसे इंस्टेंसेस में आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, और रिवर्स गियर ऐसे आसानी से लगेगा नहीं ना यार, आपको जो इररिवर्सिबल स्टेप्स हैं उन्हें बाईपास करना पड़ेगा. ओके, सो यू नीड टू नो कि कौन कौन से इररिवर्सिबल स्टेप्स हैं एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस में. Now, how is glycolysis regulated? 3 enzymes, namely hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. ये तीनों वही enzymes हैं जिनके irreversible steps थे. तो ये 3 irreversible step वाले जो enzymes हैं, they are the major control points या control mechanisms for the process of glycolysis. So hexokinase, for example, it is inhibited by glucose 6-phosphate, and it makes sense कि ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6-phosphate, और जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा. दैट्स अ रिवर्स इनहिबिशन मैकेनिज्म. दिस एंजाइम प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate ड्यू टू प्रोडक्ट इनहिबिशन. सो इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म. Phosphofructokinase is the most important regulatory enzyme, double star, it's the most important one. This enzyme catalyzes the rate limiting committed step. So this is the rate limiting step of glycolysis. Phosphofructokinase is an allosteric enzyme regulated by allosteric effectors. ATP citrate and hydrogen ion are the most important allosteric inhibitors, whereas fructose 2,6-biphosphate, ADP, AMP and inorganic phosphate are the allosteric activators. Super important line, and I would request you to park this information here, because जब हम पूरा glycolysis और Krebs cycle complete कर लेंगे, then I will come back to this particular paragraph to make much more sense कि क्यों citrate, ATP और hydrogen inhibit करते हैं इस step को. So we'll talk about it. Okay.
Now the role of fructose 2,6-bisphosphate in the glycol. Now try to remember ये था कहाँ, किस step पर था, okay? So fructose 2,6-bisphosphate is considered as the most important regulatory factor in the whole process of glycolysis, particularly in the liver. Fructose 2,6-bisphosphate is synthesized from fructose 6-phosphate by the enzyme phosphofructokinase 2. अगर हम liver की बात कर रहे हैं, fructose 2,6-bisphosphate is hydrolyzed by fructose 2,6-bisphosphatase. The function of synthesis and degradation of this compound is brought out by a single enzyme, which is referred to as bifunctional enzyme. So, the activity of the phosphofructokinase 2 and fructose 2,6-bisphosphate is controlled by covalent modification, which in turn is regulated by the cyclic AMP, which brings about dephosphorylation. ये again park this information. This will make more sense जब citric acid cycle भी हो चुका होगा. Now pyruvate kinase is another important enzyme which regulate the process of glycolysis. It is inhibited by ATP, and it makes perfect sense. So if you have more ATP in the cell, you don't need glycolysis to continue because you have already a lot of ATP. Glycolysis का काम क्या था? To generate ATP. Now you have already a lot of ATP. You want to inhibit it. Okay. So ये तीन enzymes हैं जो irreversible steps के हैं. These are the most important regulators. Okay. Now what is posture effect? अब ये effects आपको याद अगर न भी हो तो it's not a big deal. Glycolysis के steps पता होने चाहिए. But anyways, if there is inhibition of glycolysis by a lot of oxygen, too much aerobic condition, this is called posture effect. तो अगर ज़्यादा oxygen होगी, glycolysis inhibit होगी. Posture effect. इसकी क्या importance है? Well, it's a philosophical discussion. So आप सिर्फ इसकी definition भी याद रख लें तो काफी है. He observed that when anaerobic yeast culture are not important, in the aerobic condition, the levels of glycolytic intermediates from fructose 1,6-bisphosphate onward decrease. So more oxygen, reduced glycolysis. Posture effect. इसका opposite है Crabtree effect. It's a phenomenon of inhibition of oxygen consumption by the addition of glucose. So there is more glucose now, and oxygen consumption is reduced. So it's kind of opposite to the same phenomena जो हमने discuss किया था posture effect में. Okay. Then what is Rappaport-Lubering cycle? This is a supplementary pathway to glycolysis, which is operative particularly in the red blood cell. आपके erythrocytes में ये pathway है, जिसमें होता क्या है basically? It is concerned with the synthesis of 2,3-bisphosphoglycerate, very important compound in the red blood cell. Now, 1,3-bisphosphoglycerate produced in the glycolysis is converted to 2,3. आपको ये 1,3-bisphosphoglycerate याद है? So if you go back to the chart, इस पूरे chart में you see this is where the high energy compound 1,3-bisphosphoglycerate was produced. इसका अगला step क्या था? 3-phosphoglycerate. लेकिन red blood cell में इस 1,3-bisphosphoglycerate से एक और चीज बनती है और वो है 2,3-bisphosphoglycerate. So that happens only in the red blood cells. और उसका reason है 2,3-bisphosphoglycerate is hydrolyzed to 3-phosphoglycerate by the bisphosphoglycerate phosphatase. Ultimately यही बन रहा है, लेकिन एक step में बीच में ये 2,3-BPG बन गया. अब ये 2,3-BPG जो है ना, ये बनता क्यों है? Basically point ये है, इसकी significance क्या है? Multiple. So first of all, for example, production of 2,3-BP, यानी ये pathway ऐसे भी तो चल सकता था. मतलब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ. Red blood cells में 1,3-bisphosphoglycerate डायरेक्टली सीधा 3-phosphoglycerate क्यों नहीं बनाता? ऐसा क्यों है कि ये पहले बीच में बनाता है 2,3-BPG और फिर ये 2,3-BPG कन्वर्ट होता है इसमें, तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता ही क्यों है? डायरेक्ट क्यों नहीं बन जाता? इसका कोई रीजन होगा ना. सो वो रीजन अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. सो पहली सिग्निफिकेंस ये है, पॉइंट नंबर 1, it allows the glycolysis to proceed without the synthesis of ATP. And this particularly happens when the red blood cells do not require a lot of ATP. So ये एक bypass mechanism है, क्योंकि अगर 1,3-bisphosphoglycerate से directly 3-phosphoglycerate बनेगा, so you produce a lot of ATP because this is a high energy ATP compound. Then 2,3-BPG is not a waste molecule. It combines with hemoglobin, और जब ये molecule hemoglobin के साथ मिलता है तो ऑक्सीजन अनलोड होता है hemoglobin से और टिश्यूज को मिलता है. So in order for unloading of oxygen to the tissues, 2,3-BPG is important. Okay. Increase in erythrocyte 2,3-BPG is observed in hypoxic conditions, high altitude, fetal tissues, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा oxygen release हो. That's the story. Then glycolysis in the erythrocyte is linked with 2,3-BPG production and oxygen transport. बिकॉज ये मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को धक्का देता है कि वो टिश्यूज में जाए. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. द हीमोग्लोबिन एग्जिबिट हाई ऑक्सीजन एफिसिटी. दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. देन
ये एक्चुअली मैं स्टार्ट करूंगा अगली वीडियो में, बिकॉज दिस इज पर्टिकुलरली लिंक विद द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल. तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. And I love carbohydrate and lipid and protein metabolism. I hope you also do the same. शेयर करें कॉलेज के साथ वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें. आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा.